So let's start off our discussion with the biological classification. First of all, I would like to ask few questions from you regarding the biological classification. ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा सबसेक्शन है, just within few minutes हम इसको wind up कर लेंगे. Still इसमें से questions कुछ आपसे मैं पूछना चाहूँगा. You seen here, which one is basic unit of classification? A option is phylum, B option is order, C option is species, D option is class. यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? Basic unit of classification. वैसे तो ये सारे के सारे units of classification है, लेकिन यहाँ पे कीवर्ड है basic. The best response to this question is Charley. कौन belongs to which family? Poaceae, Solanaceae, Fabaceae और Brassicaceae, right? तो आपकी बुक में बेसिकली जो कौन है या जिसको हम ज़ेआमेज भी कहते हैं, उसकी biological classification लिखी हुई है, तो वहां पे ये mentioned है it belongs to the family Poaceae. Best response to this question is alpha. Next question हमारे पास, which one of the following order is correct? ये कौन सी तरतीब जो है वो ठीक है regarding the units of classification? So A option हमारे पास है जी genus से family, family से order, order से class. B option है genus, genus से family, family से species, species से class. C option है phylum, phylum से kingdom, kingdom से species, species से order. D option है species, species से genus, genus से order, order से family. तो इसके लिए जो best response है, it has to be alpha, right? तो इसके अंदर genus, genus से larger unit जो है family, family से larger unit जो है that is order, order से larger unit जो है वो class है. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है, अभी आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक नमोनिक भी दूंगा. उस नमोनिक को फॉलो करते हुए, उसको यूज करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन को इंस्टेंटली आंसर कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं उस नमोनिक को डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आगे चल के मैं मुतलका एरिया के अंदर उसको इन डिटेल डिस्कस कर दूंगा कि आपने किस तरह से, अगर आपको सीक्वेंस प्रेजेंट किया जाता है तो आपने किस तरह से उस नमोनिक को यूज करके क्विकली आंसर तक पहुंचना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लार्ज ग्रुप्स are divided into smaller ones up to which level, right? So large groups जो हैं they are divided into smaller ones up to which level? The best response to this question is species. ये larger groups को हम species तक जो है वो small groups में divide करते रहते हैं. So answer is Charley. Which one is largest group in classification? Phylum, kingdom, species or class? तो classification के अंदर जो largest group है, it has to be the kingdom, right? अगर यहाँ पे डोमेन का वर्ड भी लिखा होता तो मे बी मैं डोमेन को आंसर करता. इफ डोमेन इज नॉट ऑन द लिस्ट यू कैन पिक किंगडम. इवन इफ किंगडम इज नॉट ऑन द लिस्ट देन यू कैन पिक फाइलम एंड सो ऑन. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो हियर वी हैव गॉट द बिग पिक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन. इस सबसेक्शन में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंडली we will talk about why do we need to classify the organisms. भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या और हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पेश आती है. एंड थर्डली हम ये भी डिस्कस करेंगे हाउ बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म, कि बायोलॉजिस्ट जो है ये ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं. एंड फोर्थली हम 8 मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल. एंड लास्ट ऑफ ऑल we will conclude our discussion with this subsection by talking about the biological classification of corn. So first of all, let's start with the what is biological classification. You see here, arrangement of organisms into groups and subgroups, on the basis of similarities and differences. इसको हम कहते हैं ये this is classification. Organisms की groups और subgroups में arrangement on the basis of similarities and differences, this is called as classification. Pretty simple. And taxonomy ये वो branch है biology की which deals with the classification of organisms. So sometimes exam में question भी appear हो जाता है कि which of the following branch of biology deals with the classification of organisms, and the best response to this question has to be the taxonomy. I want you to memorize this for such sort of question. Then why do we need to classify organisms? अब organisms को classify करने की जरूरत क्यों पेश आती है?
यू सीन है कि लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ इज वेरी डाइवर्स। हमें पता है कि प्लेनेट अर्थ पे जो लाइफ है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। जैसे तकरीबन 2.5 मिलियन या 25 लाख के करीब स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि हमें नोन है, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा एनिमल्स की और 5 लाख से ज्यादा जो स्पीशीज हैं वो इनकी हैं, प्लांट्स की हैं, राइट। तो देखिए कि जो लाइफ है प्लेनेट अर्थ पे बहुत डाइवर्स है। इसके अलावा हम ये भी एज्यूम करते हैं तकरीबन 5 से 30 मिलियन तक स्पीशीज जो है वो प्लेनेट पे कभी ना कभी रही हैं टोटल। बहुत सारी इनमें से जो वो वैनिश हो गई हैं। सो एस्टिमेट ये है कि जितनी स्पीशीज इस वक्त प्रेजेंट है इससे कई गुना ज्यादा स्पीशीज जो है वो अगर हम बैकवर्ड्स इन टाइम देखें तो डिफरेंट टाइम्स पे कलेक्टिवली वो प्रेजेंट रही होंगी, राइट। ओके, तो वी क्लासिफाई दीज डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स सो एज टू स्टडी देम मोर कन्वीनियंटली। अब देखिए, जस्ट इमेजिन करें कि चले हम अज्यूम कर लेंगे 2.5 लाख स्पीशीज है। अब अगर हमने हर स्पीशी के सारे फीचर्स को अलग अलग अगर डिस्कस करना है, इट इज गोइंग टू बी टू डैम हार्ड, राइट। सो वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म सो एज टू organize the different organisms into groups and subgroups ताकि हम उनको more conveniently study कर सके। So ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि why do we need to classify organisms, organisms को क्लासिफाई करने की हमें क्यों जरूरत पेश आती है, इसका सादा तरीन जवाब ये है to study them more conveniently। organisms को ज्यादा आसानी के साथ स्टडी करने के लिए हम organism को क्लासिफाई करते हैं। We got the next area which is how biologists classify the organisms। अब biologists जो है ये किस तरह से organisms को classify करते हैं, सीन है। Biologists classify all living things into groups showing similarities based upon homologies, comparative biochemistry, cytology, genetics, right। So homology और कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स और इवन और भी बहुत सारे कह लें कि डोमेन्स हैं जिनको लेके बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया है और उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, राइट। तो देयर वाज अ टाइम जब हम ऑर्गेनिजम्स को जस्ट दो मेजर क्लासेस के अंदर, हम दो मेजर कैटेगरीज के अंदर रखते थे। हम कहते थे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, एक प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स हैं। जस्ट हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के हम कहते हैं जो चलते फिरते हैं और खुराक दूसरों से लेते हैं वो एनिमल्स हैं, और जो फिक्स हैं जो खुद खुराक बनाते हैं वो प्लांट्स हैं। तो देयर वाज अ टाइम जब सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे हम ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा बेहतर से बेहतर अंडरस्टैंड करते चले गए, राइट। आपको पता है कि ग्रेजुअली वी हैव लर्न टू सी the organisms via the microscope, और उसके बाद फिर इवन मॉलिक्यूलर लेवल पे, और इवन आप देखेंगे डिफरेंट वेज से हमने ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना सीख लिया। सो जैसे जैसे हमारा नॉलेज ऑर्गेनिजम्स के बारे में बढ़ता चला जा रहा है, अकॉर्डिंगली हम अपनी क्लासिफिकेशन को भी बेहतर बनाते चले जा रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन जो इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। न्यू डिस्कवरीज कैन लीड टू द चेंज इन क्लासिफिकेशन, राइट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की जो है ये कोई सहीफा है जो आसमान से उतरा है कि भाई ये देखें ये ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करके हमने आपको दे दिए हैं। So basically scientists, the biologists, they classify the organisms, right? So आज से few hundred years ago जब बहुत ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ऑर्गेनिजम्स की, उनको जस्ट दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, और उसके बाद जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई और से और ग्रुप्स इसके अंदर ऐड होते चले गए। अब आप खुद जानते हैं कि कितनी ज्यादा सारी किंगडम्स हैं ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो और फ्यूचर में जाके जो क्लासिफिकेशन है फर्दर चेंज भी हो सकती है। यू डोंट नो कि फ्यूचर में कौन सी डिस्कवरी ऐसी आए जिसकी बेस पे क्लासिफिकेशन को फर्दर चेंज कर दिया जाए। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वी गॉट द 8 मेजर कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम 8 जो मेजर कैटेगरीज हैं क्लासिफिकेशन की, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो यू सीन हियर कि बेसिकली जो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज द स्पीशी, राइट। और जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनको हम एक जीनस के अंदर रखते हैं, और क्लोजली रिलेटेड जो जेनेरा है उनको हम सेम फैमिली में रखते हैं। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को हम सेम ऑर्डर में रखते हैं। क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स को हम सेम क्लास में रखते हैं। क्लोजली रिलेटेड क्लासेस को
जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है। आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हम सेम फाइलम में रखते हैं और क्लोजली रिलेटेड फाइला को हम सेम किंगडम में रखते हैं और क्लोजली रिलेटेड किंगडम्स को हम सेम डोमेन में रखते हैं, राइट। सो जैसे जैसे आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, क्या हो रहा है, जो सिमिलैरिटी है वो डिक्रीज हो रही है अमंग्स दी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो अब देखिए, बहुत एक ही कोई जीनस है, अगर उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज हो सकती हैं, राइट, और एक ही फैमिली के अंदर बहुत सारे जेनेरा हो सकते हैं एंड सो ऑन। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो सिमिलैरिटी इंक्रीज होगी लेकिन नंबर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे सबसे कम तादाद में ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर होंगे, इनमें से वो स्पीशी के अंदर सबसे कम तादाद में ऑर्गेनिजम्स होंगे, और उससे रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा किसके अंदर होंगे, वो जीनस के अंदर होंगे, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो सिमिलैरिटी है वो इंक्रीज कर रही है। सो एग्जाम अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन you will expect to have the least number of organisms, best response is species, highest number of organisms domain, जो भी इस लिस्ट में सबसे टॉप पे जो यूनिट दिया गया है आप उसको आंसर कर देंगे। इस तरह से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि organisms present in which of the following unit of classification would be most closely related to each other। देखिए, स्पीशी में सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे और मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑफ कोर्स वो डोमेन के, राइट, एंड सो ऑन। अच्छा, इनके जो सीक्वेंस को याद रखने का एक तरीकाकार है वो ये है कि ये निमोनिक आपके सामने लिखा है कि डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। तो यहीं से आप इनको तरतीब लगा सकते हैं कि डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। सो डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप, तो आप इस निमोनिक को याद रख लें। तो इससे क्या होगा, इससे आप ये जो सीक्वेंस है इन सब का याद रख पाएंगे। अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशंस हैं इनको आप लार्ज टू स्मॉल में, इनको लार्ज टू स्मॉल में आप इनको कैटेगराइज करें या इनकी अरेंजमेंट को पिक करें, तो अब आपके सामने लार्ज टू स्मॉल अरेंजमेंट आ गई है कि सबसे लार्ज हमारे पास डोमेन है, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड द स्पीशीज। सो ये वाला जो निमोनिक है इसको आप याद रख लें,
इससे ऑटोमेटिकली जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज हैं इनकी सीक्वेंस को आप याद रख पाएंगे. So then we have got the biological classification of corn. तो वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशंस को हमें प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो कॉर्न है चूंकि टेक्स्ट बुक में गिवन है तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मेमोराइज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है. जैसे मैंने आपके सैंपल क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे भी थे. तो देखेंगे कॉर्न जो है इसकी जो किंगडम है दैट इज प्लांट, और इसकी जो डिवीजन है फाइलम है इसका दैट इज द एंथ्रोफाइटा, जिसको हम ट्रिकोफाइटा भी बोलते हैं. क्लास इसकी है एंजियोस्पर्मी, ऑर्डर इसका पोल्स है, फैमिली इसकी पोएसी है, जीनस इसकी जिया है, और स्पीशीज इसकी मेज है. इसमें आप एक चीज ये भी गौर करें कि स्पीशी के अलावा बाकी जितने भी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है उन सबको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. स्पीशी को देखें हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, मेज, राइट. सो बहरहाल इन दो के मिलने से ये जो जीनस और स्पीशी है इन दोनों के कलेक्टिवली मिलने से हमारे पास जो नेम बनता है वो साइंटिफिक नेम बनता है, जिसको हम आगे चल के एक सब सेक्शन में डिस्कस भी करेंगे. सो एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉर्न का ऑर्डर कौन सा है, राइट, पोल्स, क्लास कौन सी, एंजियोस्पर्मी, इसका फाइलम कौन सा है, ट्रिकोफाइटा और एंथ्रोफाइटा, सेम थिंग, राइट. इसकी जीनस कौन सी है, आंसर इज जिया, स्पीशी कौन सी है, मेज, किंगडम कौन सी है, प्लांटी, एंड सो ऑन. सो एग्जाम जो है वो आपसे ऑफ कोर्स कोई भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन देख के पूछ सकता है कि कौन के लिए ओवरऑल जो है वो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी कौन सी है. सो आई वांट यू टू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर स्टफ हियर, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द organisms. That's all about the biological. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें देखेंगे ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं. इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं. इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह. यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं
और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहे आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तैयारी के शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज